Good morning, students. The next question in exercise 5.2 is question number 13. Multiply matrices. This is first matrix and this one is another. So we have to multiply both these matrices, and then with the help of it, means with the help of multiplication, we have to solve the following equations. So first of all, we have to do multiply of these matrices. So multiply these two matrices, minus 4 4 4, minus 7 1 3, 5 minus 3 and minus 1, multiply with another one 1 minus 1 1, then 1 minus 2 and 2 1 3. So multiplication is multiply first row with first column, so minus 4 into 1 minus 4, then 4 into 1 4, then 4 into 2 we get 8. Then first row with second column, so minus 4 into minus 1 we get plus 4, then 4 into minus 2 we get minus 8, then 4 into 1 we get 4. Now first row with third column, so minus 4 into 1 we get minus 4, then 4 into minus 2 minus 8, then 4 into 3 we get 12. Now second row with first column, so minus 7 plus 1 and plus 6. Now second row with second column, so 7 minus 2 and 3 1 ja 3. Now second row with third column, so minus 7 and minus 2 and plus 9. Minus 7 into 1 minus 7, 1 into minus 2 minus 2 and 3 into 3 we get 9. Now third row with first column, so we get 5 minus 5, then minus 3, then minus 2, this to this one. Now third row with second column, so minus 5, we get minus 5, then minus 3 into minus 2 plus 6, then minus 1 into 1 we get minus 1. Now third row with third column, so we get 5, then plus 6, and then we get minus 3. So now the result is we get these cancel out, 8 4 4 8 and minus 8 cancel 0, minus 12 plus 0 0, then cancel 0, 7 plus 3, 10 minus 2 we get 8. Now minus 7 minus 9 0, then 3 to 5 0, minus 5 minus 6 0, and 6 plus 5 11 minus 3 8. So this can be written as 8, take 8 as common, so we get here 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. Take 8 common from this matrix, so it becomes 8i. This is i3, so we can write it 8i. So now this is the value of 8i. Now suppose this is matrix A and this is matrix B. So now, since suppose this is your matrix A, this is your matrix A and this is your matrix B, so A into B equals to 8i3. Now we have to find out the solution of these matrices. Suppose इसी क्वेश्चन में अगर हमें ए इनवर्स, सपोज मुझे ए इनवर्स कैलकुलेट करना होता, सो अभी इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हमसे ए इनवर्स, लेकिन सपोज ए इनवर्स कैलकुलेट करना होता, सो इससे हम ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते वो देखिए. सबसे पहले जो है यहाँ जो है मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा इधर, सो वी गेट ए इनवर्स ए इंटू बी इक्वल्स टू, इधर भी मुझे करना होगा, सो ए इनवर्स I3 यू कैन राइट I3 और I. नाउ ए इनवर्स ए बिकम्स I, सो यहाँ जो है I इंटू बी यू कैन राइट I3 इंटू बी इक्वल्स टू 8. ए इनवर्स इंटू I3 वी गेट ए इनवर्स, सो हियर ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये जो 8 है मल्टीप्लाई में, ये साइड चेंज होकर किस में आ जाएगा, डिवाइड में. और जब हम I3 को B से मल्टीप्लाई करेंगे, I3 इंटू बी वी गेट B. सो यहाँ हमारे पास ये जो वैल्यू है ये सिर्फ रहेगी B,
और इधर से डिवाइड में आ गया, सो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/8 बी। सिमिलरली अगर सपोज मुझे इस क्वेश्चन में बी इनवर्स कैलकुलेट करना होता, क्या कैलकुलेट करना होता, बी इनवर्स। सो बी इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते, ये जो है ए बी इक्वल्स टू 8, ये जो I3 है इसको मैं I लिख रहा हूं, आप चाहे I3 लिख दीजिए। सो इसको हमें बी इनवर्स कैलकुलेट करना है। सो इसको हम बी की साइड से, देखिए अगर मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है तो मैंने ए के साइड लेफ्ट में, जिधर ए है, ए लेफ्ट में है, बी राइट में है, सो ए इनवर्स को लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया है। अब मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, सो इसमें बी इनवर्स किधर है, राइट हैंड साइड में। सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा कहाँ, राइट हैंड साइड में। सो ए बी इनवर्स इक्वल्स टू 8, यहाँ भी मुझे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना होगा। सो देखिए बी एंड बी इनवर्स बिकम्स आई, सो ए आई इक्वल्स टू 8 एंड आई इंटू बी इनवर्स कन्वर्ट इंटू बी इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सो सेम मैट्रिक्स हमें मिलती है रिजल्ट में। नाउ बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इंटू आई, वी गेट आई, और ये जो 8 है ये इधर मल्टीप्लाई में साइड चेंज होगा, देन किस में कन्वर्ट होगा, अपॉन 8 में। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स। इस तरीके से हम जो है ए इनवर्स या बी इनवर्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हमें ना तो ए इनवर्स कैलकुलेट करना है और ना ही बी इनवर्स। अब देखिए ए इनवर्स जो बी है उसको मैं 1/8 से मल्टीप्लाई कर देता, दिस इज बी, इसको 1/8 से मल्टीप्लाई करते, सो 1/8 माइनस 1/8 1/8 1/8 माइनस 1/4 माइनस 1/4 1/4 1/8 एंड 3/8, ये हमारा हो जाता ए इनवर्स। ऐसे ही बी इनवर्स के लिए ए को 1/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ना तो ए इनवर्स कैलकुलेट करना है ना ही बी इनवर्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब देखिए ये जो इक्वेशंस हैं इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट द इक्वेशंस, राइट द गिवन इक्वेशंस in the form of matrices। यानी ये जो इक्वेशन गिवन है इनको अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूं तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले एक्स वाई जेड जो फर्स्ट है उससे एक्स वाई जेड मीन्स 1 माइनस 1 एंड 1 कोफिशिएंट हमने लिखे हैं, देन सेकंड्स के कोफिशिएंट 1 माइनस 2 एंड माइनस 2, देन जो थर्ड मैट्रिक्स है उसके कोफिशिएंट 2 1 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4 9 1। ठीक है, अब इसमें देखिए जो भी हमें मैट्रिक्स मिलेगी ये वाली, ठीक है, ये इन दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स से मैच होगी। ठीक है, सो ये वाली मैट्रिक्स अगर मैं इस पहली मैट्रिक्स से मैच करता हूं, देखिए मैट्रिक्स मैच है क्या, नहीं है। क्या इस सेकंड मैट्रिक्स से मैच है क्या, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3, हाँ इस मैट्रिक्स से मैच हो रही है सेकंड वाली से। एंड सेकंड मैट्रिक्स इज बी, सेकंड मैट्रिक्स इज बी, सो वी कैन राइट इट बी एक्स इक्वल्स टू, सपोज दिस इज योर सी, वी कैन राइट इट बी, दिस इज एक्स इक्वल्स टू सी। सो इसको सोल्व करने के लिए हमें चाहिए एक्स इक्वल्स टू बी इनवर्स सी, B inverse C and B inverse C can be written as 1 upon B inverse C। अब हमें ये जो इक्वेशन है, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, यहां हमें B इनवर्स की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, B इनवर्स की। दिस इज मैट्रिक्स A एंड दिस इज मैट्रिक्स B। सो अब हमें B इनवर्स की रिक्वायरमेंट है। अभी हमने पहले देखा था कि जो B इनवर्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो यहां से देखिए, सिंस ए बी, दिस इज ए दिस इज बी, इक्वल्स टू 8i 8i। सो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, बी इनवर्स की। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए बी इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू 8i एंड ए बी इनवर्स। बी राइट हैंड साइड में है इसमें, सो हमने राइट हैंड साइड में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। सो बी इंटू बी इनवर्स कन्वर्ट इंटू आई, सो AI equals to 8 I into B inverse, we get B inverse।
सो बी इनवर्स इक्वल्स टू, वी गेट बी इनवर्स इक्वल्स टू, बी इनवर्स 8 जो है मल्टीप्लाई में है, सो साइड चेंज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, और ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट ए, सो 1/8 इंटू ए, व्हाट इज ए, -4, 4, 4, then -7, 1, 3, 5, -3 and -1. These are the values of matrix A B inverse. This is the value of B inverse. Now put this value of B इनवर्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हम पुट करेंगे, सो x इक्वल्स टू बी इनवर्स सी, व्हाट इज बी इनवर्स, बी इनवर्स इज 1/8 इंटू -4, 4, 4, -7, 1, 3, 5, -3, -1 into C is this one, so 491, 491. Now we get -4 into 4, -16, -4 into 4 we get -16, 4 into 9 equals to 36, then 4 into 1, 4. Now second row with this column, so -28 plus 9 plus 3. Now multiply third row with this column, so 20 minus 27 and -1, and this is your 1/8. This is your 1/8. Multiply these two matrices, we get this one. Now x is, what is x? X is x, y, z. So this is x, y and z. This is your x इक्वल्स टू 1/8, दिस इज 1/8, इसको सोल्व करेंगे, सो 30 प्लस 4 -16 प्लस 36, -16 प्लस 36 वी गेट +20 प्लस 4, सो 24, देन -28 and 9 3 12, so -28 plus 12 equals to -16. Now 28 plus 20, so we get -8. So 1/8 को जब हम डिवाइड करेंगे, then we get 3, 1/8 into 24, 3, 1/8 into -16 we get -2, and 1/8 into -8 we get -1. These are the value of x, y, z. So x equals to 3, y equals to -2, and z equals to -1. These are the solution of these equations. So in this way we solve the equations by use of multiplication of two matrices. The next question number 14 is find inverse matrix of this one. So ये वाली जो मैट्रिक्स है इसकी हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है. सो ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि कोई मैट्रिक्स है उसकी इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर सपोज इस मैट्रिक्स को मैं ए अज्यूम कर लूँ, क्या अज्यूम कर लूँ, ए, सो मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. सो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब आते हैं हम इसमें एंड सोल्व दिस वन. सो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्सेज हैं देखिए एक्स वाई जेड इस साइड भी है और एक्स वाई जेड इस साइड भी है. सो पहले हम इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके एक्स वाई जेड को जो है एक ही साइड में लेके आते हैं. सो अगर इनको मैं सोल्व करूं, देन वी गेट x इंटू 1 इंटू एक्स एक्स, 0 इंटू वाई 0 एंड 1 इंटू जेड जेड. सो वी गेट x प्लस z, ठीक है. देन 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 इंटू वाई, वाई 0 से मल्टीप्लाई होकर 0. देन दिस 0 y एंड z, सो वी गेट y प्लस z इक्वल्स टू, इस साइड में अगर हम इनको सोल्व करें इक्वल्स टू, देखिए ये हमें क्या मिलेगा, एक 1/1 की जो है मैट्रिक्स मिलेगी इस साइड. सो इक्वल्स टू इस साइड हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, सो इससे कैंसिल हो जाएगा. देन ये इससे होके 4, सो हमें यहाँ मिलेगा y प्लस 4. देखिए
1/2 मल्टीप्लाई 2y, सो 2 से 2 कैंसिल, हमें मिलेगा y प्लस 2 इंटू 2 4। सिमिलरली जब इससे मल्टीप्लाई होगा देन वी गेट 3z, 1/2 इंटू 6z 3z प्लस 0, देन 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा देन माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर की, दिस इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स ऑफ वन ऑर्डर 1/1, सॉरी दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/1, और ये भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3/1। 3/1 की दोनों मैट्रिक्सेस हैं, सो सेम पोर्शन पे जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। सो यहाँ से हम लिखेंगे x प्लस जेड इक्वल्स टू वाई प्लस 4, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3z, एंड यहाँ से हमें मिलेगा y प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। सो जब इनको हम अगेन कन्वर्ट करेंगे, सो ये जो इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x साइड चेंज होगा, देन वी कैन राइट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। सो अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है, ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में अब लिखें, इनको किस फॉर्म में लिखें, मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे। सो ये जो है कन्वर्ट होगी, these equations can be written as मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, देन 1 माइनस 1 एंड 1 2 1 माइनस 3 1 1 1 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4 0 2। सो अगर मैं इसको अज्यूम करूं, देखिए ये वाली जो मैट्रिक्स है आपके पास ये एज इट इज मैट्रिक्स मिलेगी 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। सो इसको मैं लिख सकता हूं a, ये हमारी हो जाएगी x इक्वल्स टू, ये अज्यूम कर लिया b, देन x इक्वल्स टू, देन x इक्वल्स टू a इनवर्स b। सो a इनवर्स हम पहले यहां कैलकुलेट कर चुके होंगे, फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ दिस वन। सो इसका हमने इनवर्स कैलकुलेट किया, वो वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, इनटू b कर देंगे। सो उसको सोल्व करके x y z के इक्वल पुट कर देंगे, सो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आप सोल्व अब आपको करना है आगे। वापस बता रहा हूं, a इनवर्स हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, उस a इनवर्स को हम यहां पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स a है वो सेम एज इट इज यही मैट्रिक्स है। सो इसका इनवर्स वही होगा जो यहां हमने इनवर्स कैलकुलेट किया है। सो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इनटू बी वाली जो मैट्रिक्स है वो ये है, मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी उसको एक्स वाई जेड के इक्वल पुट करके जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ ए इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, मीन्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिसकी सारी की सारी साइड्स जो हैं इक्वल हो लेंथ में। सो उसकी जो लेंथ है साइड की दैट इज a, एंड x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, देन प्रूव दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। सो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। LHS अगर मैं यहाँ लूँ LHS, सो LHS इज x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2, इसका क्या है स्क्वायर। सो स्क्वायर कैन बी रिटन एज x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 into multiply of a determinant square means square of this determinant means multiply this determinant 2 times. So again we write it x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई मैट्रिक्स है, देखिए ये तो है यहाँ पे डिटरमिनेंट, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स है सो उससे अगर हमें कोई एलिमेंट या कोई नंबर जो है कॉमन लेना हो सो वो हर एलिमेंट से कॉमन आता है। लेकिन डिटरमिनेंट में, दिस इज डिटरमिनेंट में अगर हमें कुछ कॉमन लेना है सो अगर वो किसी एक रो, सिंगल रो या सिंगल कॉलम में भी कॉमन है तो भी हम कॉमन ले सकते हैं। सो देखिए यहाँ से 2 2 2, यहाँ पे इस कॉलम से मैं क्या करूँ 2 को जो है कॉमन ले लूँ। सो ये जो है दिस कैन बी रिटन एज 2 कॉमन आ गया,
और यहाँ हमें मिलेगा x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1। सिमिलरली यहाँ से भी मैं 2 कॉमन ले लूँ, सो यहाँ जो है मुझे मिलेगा x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड 1 1 1। नाउ 2 इंटू 2 बिकम्स 4। नाउ अब देखिए यहाँ जो है ये तो हो गया 4, 2 एंड 2 4। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ x1, देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप समझने के लिए, y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 into again x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1 1। इंपॉर्टेंट स्टेप। सो यहां पे मुझे क्या करना है, देखिए अगर मैं यहां पे इंटू हाफ कर दूं, देखिए एक बार ये 4 इंटू मैं थोड़ा गैप दे के लिख रहा हूं यहाँ 4 इंटू, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे 1/2 लिखता हूं, सो 2 लिखने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि उस कंडीशन में ये 2 और ये 2 कैंसिल होके मेरे पास जो इनिशियली इक्वेशन है वही रहेगी। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ भी 1/2 लिखूं, सो मुझे एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक बार फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए वापस एक बार थोड़ा बड़ा करके अगर मैं लिखूं, सो दिस इज 2 इंटू 2 4, मेरे पास ये तो हुआ 4, 2 इंटू 2 4 इंटू दिस डिटरमेंट एंड दिस डिटरमेंट। अब अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिखूं, सो मुझे इंटू 2 करना होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ 1/2 लिखूं, सो मुझे अगेन यहाँ पे 2 करना होगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए जब मैं यहाँ 1/2 कर लूंगा, सो ये जो है ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। दिस इज द फॉर्मूला या आइडेंटिटी टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। सो ये जो है उस ट्राइंगल का एरिया है जिसके वर्टेक्स जो है x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। और ये हमें क्वेश्चन में यहाँ इनिशियली स्टार्टिंग में जो है गिवन है कि एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स ये है, और देखिए वो ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसका एरिया होता है, अगर आपको ध्यान हो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो देखिए 1/2 इंटू दिस वन, ये है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इसको मैं लिखूंगा √3/4 इंटू साइड इज ए, सो ए स्क्वायर। सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू है ये भी एरिया है उसी ट्राइंगल का, क्योंकि वही वर्टेक्स है। सो इसको भी मैं लिखूंगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इन दोनों को हमने ये लिख दिया, इंटू देखिए ये रह गया 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, सो 16 इंटू दिस वन। सो अब देखिए 4 इंटू 4 16, इस 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहां रहेगा √3 इंटू √3 वी गेट 3, ए स्क्वायर वी गेट A4। सो ये जो वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू, इस डिटरमिनेंट के स्क्वायर की वैल्यू, वो हमारे पास इक्वल होगी किसके, 3a⁴। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो दिस इज आवर RHS, ठीक है। एक बार फिर देखिए ये वाली जो स्क्वायर है इसको मैंने स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दिया, इस कॉलम से मैंने 2 और 2 कॉमन ले लिया। सो हमारे पास ये हो गया। अब देखिए इसको मैं एरिया के जो आइडेंटिटी है उसमें कन्वर्ट करूंगा। सो एरिया के लिए देखिए हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट से 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1 ये फॉर्म होती है। सो ये तो हमारे पास है, मुझे क्या लेके आना साथ में 1/2। सो अगर मैंने 1/2 यहाँ लिखा, सो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली इसमें मैंने 1/2 लिखा, सो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये तो हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2 16। और ये जो है एक ऐसा ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स ये हैं तीनों, उसका एरिया है। और ये जो ट्राइंगल कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो यहाँ मैंने अप्लाई किया, सिमिलरली यहाँ अप्लाई किया, इसको सोल्व किया, देन वी गेट 3a⁴।